ہائپر لرن کے ناظرین کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بتایا جائے گا اور ان کی زندگی پر روشنی ڈالی جائے گی، جن کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی وہ اولاد ہیں جو تا قیامت زندہ رہیں گی۔ حضرت خضر علیہ السلام اور آب حیات کی حقیقت کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا اور حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ساتھ بیل بٹن کو آن کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین اکرام، حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام بلیہ اور والد کا نام ملکان ہے۔ بلیہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے۔ خضر ان کا لقب ہے اور اس لفظ کو 3 طرح سے پڑھ سکتے ہیں: خضر، خضر اور خضر۔ خضر کے معنی سبز چیز کے ہیں۔ آپ جہاں بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جاتی تھی، اس لیے لوگ ان کو خضر کہنے لگے۔ یہ بہت عالی شان خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے آباء و اجداد بادشاہ تھے۔ بعض عارفین نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان ان کا نام، ان کے والد کا نام اور ان کی کنیت کا نام یاد رکھے گا، انشاءاللہ تعالی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو ہو سکے تو اس کنیت کو یاد رکھیے گا، ابو العباس بلیہ بن ملکان۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے وزیر اور جنگوں میں علمبردار رہے۔ ناظرین اکرام، انسان کی فطرت میں طاقت، دولت اور اقتدار کی لالچ موجود ہے۔ دنیا میں ہونے والی جنگوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو ان کے پیچھے بھی یہی 4 چیزیں نظر آئیں گی، کیونکہ تاریخ میں ایسے بہت سے ظالم و جابر بادشاہ بھی گزرے ہیں جنہوں نے پوری نہیں تو آدھی دنیا میں حکومت کی، جس میں سکندر اعظم اور چنگیز خان کا نام سر فہرست ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ لوگ بھی اتنی شان و شوکت، تخت و تاج اور جلال والی زندگی چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کیونکہ موت برحق ہے۔ پھر انسان کے دل میں خواہش پیدا ہونے لگی کہ کیا موت کو بھی شکست دینا ممکن ہے؟ کیا پتہ یہ کوئی ایسی بیماری ہو جس کا علاج ممکن ہو؟ اور پھر یہی سوچ لے کر مختلف مذاہب اور مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اپنے علم، عقیدے اور الہام سے اس خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کی، تو وہی آب حیات کا تصور نسل در نسل آگے چلنے لگا۔ آب حیات کا مطلب ایک ایسا جادوئی پانی جسے پی کر یا نہانے سے انسان کو کبھی موت نہیں آتی، وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی آب حیات ایک حقیقت ہے یا ایک تصور؟ اگر یہ ایک حقیقت ہے تو پھر یہ کہاں پر موجود ہے؟ کیا کوئی انسان وہاں پہنچ سکتا ہے یا یہ انسانوں کا صرف ایک خیالی افسانہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں؟ دنیا بھر کے مذاہب اور سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ آب حیات دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ہمیشہ کی زندگی دینے والا، ایک پراسرار قسم کا پانی جس کا تصور آج کا نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانا ہے۔ یہاں تک کہ انجیل میں بھی اس کا ذکر کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ پھر اس نے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دیکھا جو کہ خدا اور برا کے تخت سے نکل کر اس شہر کے درمیان میں بہتا تھا، اور اس دریا کے پار زندگی کا درخت تھا۔ اس کے علاوہ اسلام سے پہلے فارسی مطلب موجودہ ایران کی ادب کی مختلف کہانیوں میں اکثر اس کا ذکر ملتا ہے، جس میں ایک کہانی اشیل نام کے شخص کی بھی ہے جس میں اس کی ماں اسے دریائے اسٹرائک پر لے جاتی ہے جو زمین کے نیچے بہنے والا ایک پراسرار قسم کا دریا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو اس کا پانی پلانا اور نہلانا چاہتی تھی تاکہ اس پر ہتھیاروں کا اثر نہ ہو، یعنی یہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے، اسے موت نہ آئے۔ اسلام میں بھی آب حیات کو 2 پیغمبر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے کہ ان دونوں پیغمبروں نے آب حیات پی رکھا ہے، اور اس لیے یہ دونوں پیغمبر آج تک زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام سمندری کناروں پر رہ کر بھولے بھٹکے لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں، اور یہ دونوں پیغمبر حج کے دنوں میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بلکہ مل کر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ پرانی اسرائیلی روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام
सिर्फ ये तीनों लोग ही आज तक आब हयात वाली जगह पर पहुंच पाए हैं, जिसके मुताबिक आब हयात हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को नसीब हुआ, जबकि हज़रत ज़ुल्करनैन इससे महरूम रह गए। जिसकी वजह बहुत अजीब और दिलचस्प बताई गई है, वो ये कि उन्होंने वहाँ एक परिंदे को बैठे हुए देखा जो बहुत ही कमज़ोर और लागिर हो चुका था। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, तेरी ये हालत कैसे हो गई? उस परिंदे ने जवाब दिया कि मैंने भी आपकी तरह आब हयात की तलाश की, जब वो मिल गया मैंने उसे पी भी लिया, लेकिन उसका असर मुझ पर यह हुआ कि मैं वक्त के साथ साथ बूढ़ा तो हो रहा हूँ, लेकिन मुझे मौत नहीं आती। यानी इस पानी ने मुझे सिर्फ मरने से बचाया है, ना कि बूढ़ा होने से, और अब मैं इसी कमजोरी और बुढ़ापे से तड़प तड़प कर जिंदगी गुजारूंगा, लेकिन मुझे कभी मौत नहीं आएगी। लेकिन ये सब सुनकर हजरत ज़ुल्करनैन ने पानी पीने का इरादा तर्क कर दिया और वापस आ गए। इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये आपको वीडियो के आखिर में जाकर पता चल जाएगा। जबकि जहाँ तक हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के जिंदा होने का ताल्लुक है, तो इसके अंदर कोई शक नहीं कि वो तारीख की एक पुरस्कार शख्सियत हैं, जिनके बारे में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हैं कि वो जिंदा भी हैं कि नहीं, और ये भी कि क्या वो कोई फरिश्ता थे जो इंसानी शक्ल के अंदर जमीन पर आए और मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म सिखाया, या कोई वली अल्लाह या कोई पैगंबर। मगर अकल के करीब तर बात यही लगती है कि वो पैगंबर ही थे, क्योंकि एक पैगंबर को गैर पैगंबर या कोई वली अल्लाह इल्म नहीं सिखा सकता, खास तौर पर वो पैगंबर जब हजरत मूसा जैसी अजीम पैगंबर की शख्सियत हो। हजरत खिज़र की शख्सियत को लेकर मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा कराम के दरमियान इख्तलाफ है। मिसाल के तौर पर मशहूर इस्लामी स्कॉलर इब्न हजर अल अस्क़लानी ने अपने एक रिसर्च पेपर अल-ज़ाहिर अल-नसर फ़ी हाल अल-खज़र के नाम से लिखा है, जिसका उर्दू तर्जुमा हयात हजरत खिज़र के नाम से छाया हुआ है, जिसके अंदर वो इस बात को नहीं मानते कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा हैं, जबकि मोहम्मद बिन इसहाक जो 8वीं सदी के कदीम तरीन इस्लामी हिस्टोरियन और इस्लामी रिसर्चर थे, इनके मुताबिक जब हजरत आदम की मौत का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों को जमा करके फरमाया कि अल्लाह का वादा पूरा होने वाला है, इसके बाद अल्लाह का अजाब यानी तूफान नू आने वाला है, इसलिए तुम मेरे जिस्म को ले जाकर एक गार में रख देना, हत्ता कि मुझे शाम की सरजमीन पर ले जाकर दफन कर देना। जिसके बाद तूफान नू आया और नूह ने अपने बेटों को जमा करके फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम ने मौत से पहले अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी थी कि इस शख्स की उम्र को क़यामत तक लंबा कर देना जो मेरी तदफीन करे। यहाँ तक कि तूफान नू ख़त्म हुआ और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तदफीन की। यूँ अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से किया हुआ अपना वादा पूरा किया और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की उम्र क़यामत तक लंबी कर दी, ना कि किसी आब हयात के पानी की वजह से। इसलिए आप अपने बाद आने वाले तकरीबन सभी नबियों से मुलाकात करते रहे। मिसाल के तौर पर हजरत याकूब से और इसके बाद हजरत यूसुफ से मिलकर इनके बाप से मिलने की मुबारकबाद भी दी। हजरत मूसा को वो इल्म सिखाया जो वो नहीं जानते थे। आपने ग़ज़वा बदर में भी शिरकत की, जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी कि अगर आज ये तेरी मुट्ठी भर जमात तबाह हो गई तो ज़मीन पर तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। लिहाजा हजरत खिज़र की शिरकत यहाँ लाजमी थी। और आखिर में आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी आपने मुलाकात की और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पर भी सहाबाए कराम से अफसोस किया, जिन्हें उस वक्त किसी ने नहीं पहचाना। लेकिन इनके जाने के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सहाबाए कराम को बताया कि ये हज़रत खिज़र थे जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पर अफसोस के लिए आए थे। हत्ता के फितना दज्जाल के वक्त दज्जाल अपनी शोबदाबाजियों से मुर्दों को लोगों के सामने जिंदा करेगा तो एक शख्स खड़ा होकर उसे चैलेंज करेगा कि तू झूठा, बदकार और दज्जाल है। ये सुनकर दज्जाल लोगों के सामने अपनी झूठी खुदाई साबित करने के लिए उस शख्स को मार कर फिर से जिंदा करेगा। फिर वो शख्स जिंदा होकर खुदा की कसम खाकर कहेगा कि अब मुझे यकीन हो गया कि तू ही दज्जाल है, जिसके फितने का जिक्र पहले पैगंबर से लेकर आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को डरा कर करते रहे और इन्हें खबरदार किया। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम होंगे।
जिसके बाद इन्हें भी क़यामत के दिन मौत आनी है और जिंदा सिर्फ एक ही ज़ात को हमेशा के लिए रहना है, और वो है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात। कुरान पाक की सूरत कहफ की आयत नंबर 6166 में बिना इनका नाम लिए हजरत खिज़र और हजरत मूसा का वाक़या भी कुछ इस तरह से मौजूद है कि एक बार मूसा ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि क्या इस रोए ज़मीन पर मुझसे ज़्यादा इल्म तूने किसी को दिया है? तो मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि एक बंदा तुमसे भी ज्यादा आलिम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, परवरदिगार मैं उस तक कैसे पहुंचूं? हुक्म हुआ कि जहां पर दो दरिया मिलते हैं वहां पर। साथ ही ये हुक्म भी मिला कि अपने साथ एक मछली नमक लगा कर रख लो, और जहां जाकर ये मछली गुम हो जाए हमारा ये पसंदीदा बंदा तुम्हें वहीं मिलेगा। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मजम्मा अल बहरीन यानी वो जगह जहाँ पर बहरा रूम और फारस आपस में मिलते हैं, यहाँ पर एक नहर के करीब पहुँचे तो वहीं एक चट्टान पर कुछ देर के लिए आराम करने के लिए लेट गए। मछली आपके साथ थी, वो हजरत यूशा बिन नून की जंबील में थी। पानी के कतरे जैसे ही उस पर पड़े तो वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर उस पानी में चली गई। जब मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ से रवाना होकर कुछ दूर गए तो यूशा अलैहिस्सलाम से कहा कि मुझे भूख लगी है, वो मछली लेकर आओ। यूशा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जहाँ हमने आराम किया था वहीं पर अजीब व गरीब अंदाज में चलकर या अचानक से छलांग लगाकर पानी में गायब हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वापस चलो, इसी जगह की तो हमें तलाश थी। जब आप वापस लौटे तो देखा एक बंदा खुदा वहाँ पर बैठा हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे सलाम किया, फिर कहा कि मैं मूसा हूँ, बनी इसराइल का नबी। यही खुदा का बंदा हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। ये तमाम तफसील तफसीर इब्न कसीर के अंदर लिखी हुई है, आप लोग जानते हैं। और आपने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र किया। उन्होंने कहा कि मूसा मैं जो काम भी करूं उससे सवाल नहीं करोगे, इसलिए हम इस वाक़े की तफसील में नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि इस नहर के पानी के अंदर खुदा ने यह तासीर रखी थी कि मुर्दा मछली पर इस पानी के छींटे पड़ने पर वो खुदा के हुक्म से जिंदा होकर पानी के अंदर गायब हो गई। जबकि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तो रहते ही इसी जगह पर थे, तो क्या उन्होंने इस पानी से फायदा नहीं उठाया होगा? इसलिए कई लोग इस नहर को ही दरअसल आबे हयात मानते हैं, जबकि ये सरासर गलत है। इसकी वजह हम ऊपर जान चुके हैं कि ये आदम अलैहिस्सलाम की दुआ ही थी जो हजरत खिज़र के हक में पूरी हुई। और अगर ऐसा नहीं है और सच में ही ये नहर आबे हयात है तो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम किस तरह से क़यामत तक जिंदा हैं, जिन्होंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी कि मेरी ये उम्र आपकी इबादत के लिए इंतहाई कम है, मुझे क़यामत तक की मोहलत दें ताकि मैं जी भर के आपकी इबादत कर सकूं। और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठाकर क़यामत तक जिंदा रखा गया। यानी पैगंबरों के पास ये इख्तियार होता है कि अल्लाह ताला से कोई भी ऐसी दुआ कर सके। जबकि दूसरी तरफ आबे हयात जैसे पानी का जिक्र मनगढ़ंत इसराइली रवायात और किस्से कहानियों में ही मिलता है। ऐसा कोई पानी पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी शक्ल में मौजूद नहीं, और आज की साइंस में दुनिया का कोई कोना पोशीदा नहीं जहाँ तक वो पहुँच ना सकें। बहरहाल मौत बरहक है और हर जानदार ने इसका मजा चखना है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑन कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना और अपने साथ वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।